Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all our viewers. This is our educational channel Learning Biology Online and I am Dr. Asad, and in this lecture we will continue to discuss some of the important types of fungi on the basis of their reproductive mechanism and different types of reproductive organs that they use to reproduce sexually or asexually. So in this lecture we will cover the zygomycetes. So by the end of this lecture, I hope that you will be able to understand what zygomycetes actually are, how they reproduce, and you will also be able to describe how the mechanism of alternation of generation occurs within them. Finally, we will also come to know whether the zygomycetes are able to reproduce asexually as well or not. So first of all, we will go through the structure of the zygomycetes. So mostly the zygomycetes, they are always non-segmented when it comes to their hypha. ठीक है, जबकि पहले जो हमने एस्कोमाइसीट्स वाला कंपोनेंट कवर किया था, जो ग्रुप था इनका, that has segmented hypha. So this is how they are different from the ascomycetes. और obviously जब non-septate hypha है, it means that septum hypha is not divided into septum. So they appear to be multinucleated, and once their spores they are going to germinate, there is going to be presence of mycelium, that is the main body that consists of branches known as the hypha. mycelium से आगे फिर जो एक स्ट्रक्चर जो है mycelium के साथ अटैच होता है, that is what we call the sporangia, that consists of spores. ठीक है, तो ये जो हाइफा इसके डेवलप होते हैं, दैट डेवलप थ्रू द स्पोर्स और द जर्मिनेट थ्रू स्पोर्स. तो इसकी बड़ी कॉमन एग्जांपल जो है, दैट इज़ राइजोपस, दैट ग्रोज इन मॉइस्ट एनवायरनमेंट, स्पेसिफिकली ऑन द सरफेस ऑफ फ्रूट्स और इवन ब्रेड. अक्सर ब्रेड को हम देखते हैं अगर पैकेट में होती है अनक्लोज्ड एंड इट गेट्स वेट, तो अक्सर उसके ऊपर फंगस लग जाता है ग्रीन से कलर का और डल ग्रीन सा उसका कलर होता है. दैट इज़ basically the rhizopus that grows on the surface of moist fruits or even the bread. ठीक है, तो इसके जो हाइफा के जो फर्दर आगे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं इसके हाइफा के ऊपर, उसको हम रॉयजॉइड्स कहते हैं. सो नाउ वी विल गो थ्रू हाउ the sexual reproduction occurs in zygomycetes that leads to formation of the spores, and then how the spores they reproduce asexually. So the sexual reproduction in case of the zygomycetes, it once again includes the fusion of the hypha, but this time as we all know that the hypha is non-septate. ठीक है, so जो non-septate hypha के जो modified ends होते हैं, they are basically the gametangia, the male and the female gametangia. So दो जो separate fungi के hypha हैं from separate individual, they will fuse and they will form first of all a zygote that has the diploid number of chromosome within that. ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि देर जो diploid zygote है, that will further divide through meiosis and it will produce new spores. Spores जब favorable condition में germinate करेंगे, so they will transform into formation of new mycelium. ये भी जो process है ये as it is ही अकर करता है. ओनली डिफरेंस इन द स्ट्रक्चर इज द प्रेजेंस ऑफ द नॉन सेपरेट हाइफे. ठीक है, तो हाइफा का आप कह सकते हैं कि ये जो मॉडिफाइड एंड्स हैं दैट आर नोन एज द गैमेटेंजिया. ठीक है, सो मेल और फीमेल गैमेटेंजिया के जो मॉडिफाइड एंड्स हैं दे विल फ्यूज टुगेदर. वंस अगेन देयर विल बी डायकैरियोटिक फेज. ठीक है, जिसमें दो सेल्स फ्यूज तो कर गए लेकिन उनके जो न्यूक्लियाई हैं दे आर स्टिल टू जॉइन टुगेदर. ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि जब लेटर ऑन द प्रोसेस ऑफ कैरियोगैमी इज गोइंग टू अकर, उसमें क्या होता है कि न्यूक्लियाई विद देयर हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम दे विल फ्यूज टुगेदर एंड दे विल ट्रांसफॉर्म इनटू अ हैप्लॉइड सेल, जिसको कि हम कहते हैं ज़ाइगोस्पोर, दैट हैज़ डिप्लॉइड नंबर ऑफ न्यूक्लियाई. ठीक है, या डिप्लॉइड सेल भी कहते हैं. अब ये डिप्लॉइड सेल जो है, दिस फर्दर गोज इनटू द प्रोसेस ऑफ meiosis over here. ठीक है, meiosis के बाद क्या होगा कि there will be production of spores that have half the number of chromosomes.
और फिर ये जो स्पोर्स हैं दे विल डेवलप इनटू न्यू माइसीलियम एंड न्यू राइजोपस स्ट्रक्चर विल बी फॉर्म। तो ये सारे का जो प्रोसेस है वो एज इट इज़ ही होता है, ओनली देयर इज स्ट्रक्चरल डिफरेंस ऑफ हाइफा। यहाँ पे क्या हो रहा होगा, देयर विल बी प्लाज्मोगेमी, जिसमें क्या होना है कि सेल्स जो हैं वो आपस में फ्यूज़ करते हैं, बट द न्यूक्लियाई दे आर प्रेजेंट एज इट इज़। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे पास इनिशियल जो डाइकैरियोटिक फेज होता है, दैट इज़ अ लॉन्गर फेज दैट कंसिस्ट ऑफ 2 न्यूक्लियाई एट अ टाइम। ठीक है, दैट अंडरगोज कैरियोगेमी, जिसमें कि ज़ाइगोस्पोर बनता है, जिसके बाद एंड व्हेन देयर इज प्रेजेंस ऑफ अ सिंगल न्यूक्लियस बट इट कंटेन्स डबल द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है, उसके बाद प्रोसेस ऑफ मेयोसिस के बाद हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स वाले स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। सो दिस इज़ हाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इट अकर्स अंडर इन केस ऑफ द ज़ाइगोमाइसीड्स। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ये जो है वो डिप्लॉयड एक जो जनरेशन बनी थी, या डिप्लॉयड सेल जो बने थे, दे हैव ट्रांसफॉर्म्ड इनटू हैप्लॉयड जनरेशन। तो ये जो इंटरचेंज है बिटवीन वन जनरेशन टू अनदर, इस फिनोमेना को वी कॉल इट एज द अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन फिनोमेना। थोड़ा सा ब्रीफली अगर हम यहाँ पे कोशिश करेंगे कि एक तो हमें राइजोइड्स जो हैं, जो राइजोपस उसके स्ट्रक्चर का भी पता चले। ठीक है, सो दिस इज़ द फ्रूट बॉडी जिसके ऊपर स्पोरेंजिया है एंड दिस कंसिस्ट ऑफ स्पोर्स। ठीक है, इसी तरह से इसका ये माइसीलियम है दैट कंसिस्ट ऑफ हाइफा। तो ये हम कंसिडर कर सकते हैं मेल गैमेटेंजिया, और द मेल इंडिविजुअल दैट कंसिस्ट ऑफ द मेल गैमेटेंजिया। उसके बाद जो यहाँ पे हम एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे फॉर द फीमेल गैमेटेंजिया, स्ट्रक्चर इज़ गोइंग टू बी द सेम। ठीक है, यहाँ पे स्पोरेंजियम है, ठीक है, फ्रूट बॉडी है उसकी, इसके बाद माइसीलियम दैट कंसिस्ट ऑफ हाइफा ओवर हियर। तो ये जो हाइफा के मॉडिफाइड सेगमेंट्स होते हैं मेल और फीमेल गैमेट्स के, दोज बेसिकली कम इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। ठीक है, और इसके बाद क्या होता है कि देयर इज प्रोसेस ऑफ प्लाज्मोगेमी, जिसमें कि क्या होगा कि दो सेल्स फ्यूज तो कर गए हैं बट दे कंसिस्ट ऑफ 2 न्यूक्लियाई। ठीक है, अब ये क्या होगा कि आगे जाके जिसको हम डाइकैरियोटिक्स जो है वो सेल कहते हैं, या डाइकैरियोटिक फेज, लेटर ऑन क्या होगा कि इनके जो न्यूक्लियाई हैं दे विल फ्यूज टुगेदर एंड देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ अ सिंगल न्यूक्लियस। नाउ दिस सेल कंटेन्स डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम, इसलिए हम इसको हम इसको जो है वो डिप्लॉयड सेल कहते हैं। ये हमारे पास डाइकैरियोटिक सेल है दैट कंसिस्ट ऑफ 2 न्यूक्लियाई। ठीक है, इसके बाद क्या होगा कि ये जो डिप्लॉयड जनरेशन है दैट विल गिव राइज टू न्यू डॉटर सेल्स। ठीक है, न्यू स्पोर्स जिसमें के हैप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो ये हैप्लॉयड स्पोर वंस अगेन नया माइसीलियम बनाएंगे और नए सिरे से ये स्ट्रक्चर बना देंगे दैट कंसिस्ट ऑफ स्पोर्स विद इन इट्स स्पोरेंजिया, दैट इज द सैक लाइक स्ट्रक्चर। The second type of reproduction that we can observe in case of zygomaicete is the asexual reproduction. ठीक है, asexually ये reproduce करते हैं by formation of spores on specific hyphal extensions known as the sporangia. ठीक है, तो इस reproduction के बारे में हम already पढ़ चुके हैं जब हमने asexual reproduction का concept किया था. So this is just a reinforcement of that type of reproduction that we have already gone through. कि mycelium that consists of branches known as hypha, उसके ऊपर there is formation of sporangia. ठीक है, that is a stalk like extension that then consists of specific spores on its surface. तो जब भी favorable condition होती है तो ये जो spores हैं they cut off from the hyphal extensions and they spread through wind or insect and then they develop finally into the new mycelium. Diagrammatically already हम इसको अपने previous lecture में cover कर चुके हैं. तो ज़्यादा डिटेल में अगर आप इसको अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो वहाँ पे दोबारा से आप इसको देख सकते हैं, और इसकी डायग्राम भी हमने बना के शो की थी कि किस तरह से स्पेसिफिक माइसीलियम के हाइफा के ऊपर जो है स्पोरेंजिया होते हैं. स्पोरेंजिया देन कंसिस्ट ऑफ
कवर्ड स्पोर्स, ठीक है, स्पोर्स की बेसिकली कवरिंग को हम स्पोरेंजिया कहते हैं, और वहाँ से वो हाइफा से कट ऑफ होके दे स्प्रेड through different modes and they can germinate within their favorable conditions. So this is the end of our lecture. Do like our video and share it with your colleagues if you have been able to understand the concept of zygomycetes, what is their structure, how they reproduce, and in the comment section do mention if you have any question relevant to the topics we have covered over here. Do not forget to subscribe to our channel, click the bell button so you can receive new video notifications on regular basis. Thank you very much.